Good morning to you all. To start with, I pray my first tribute to Gautam Buddha and Dr. B.R. Ambedkar, dignitaries present on the dais and off the dais, representative of all the HR management, national and multinational companies participating in this mega event. Free book bank service, concession in tuition fees to the meritorious and economically weaker students. And most important of all is free bus facility. I am happy to see all the corporate people present over here to provide the job opportunity to the eligible candidates from the rural, backward and remote areas of Nagpur and Amravati region. Actually, you all are contributing for the welfare of the today's youth in the present era, where most of the educated youths are facing the big issue of unemployment. I wish all the best to all job seekers and employers who gathered here. Give you the give your the best and grab the opportunity. We started this job fair for the first time with an idea in mind to make available the jobs to most of the educated youth in this region. Earlier, our efforts were limited to providing the jobs to the students of our college only. Up till now, many students of our college have got good jobs in various companies and government organizations. This year, we are looking for many other youths apart from the students from our college to get selected. It is our sincere desire of organizing such mega events regularly every year henceforth. I must mention here the collective efforts of our co-convener, convener, co-coordinator and the organizing team because of their hard work and dedication of whom we could conduct this event successfully and succeed in reaching the youths of Nagpur and Amravati region. I request all the HRs present over here to try to accommodate as many aspirants as possible from our region in your employment. Non-stability of employees is a major headache for the corporate world. So both the companies and the job seeker should do the self-evaluation over their business and job. Time is very valuable. We cannot waste it by waiting for our dream job. We should be ready to do any work because each work has its own dignity. In today's world, everyone is specialized. But at the same time, we need to have a basic knowledge of every job. It will make us more special in a firm and society. With the success of this event, I promise you all that the Maitreya Education Society will always support you all in conducting such events as a part of our social commitment towards backward, poor and needy youths. I thank you your great contribution in this event and wish all the best to all the aspirants present over here to face the interviews. My blessings are with you. Thank you very much. नंतर सेक्रेटरी सर वाघमारे, कॉलेजचे प्रिन्सिपल कोले सर, नंतर व्हाईस प्रिन्सिपल, नंतर सर्व कॉलेजेसचे लेक्चरर्स आणि स्पेशली जे मेगा ड्राईव्ह साठी आलेले आहेत आमचे एम्प्लॉयर्स आणि त्यासाठी विद्यार्थी तयार झालेले आहेत इंटरव्ह्यू देण्यासाठी, त्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो. आणि हा जो उपक्रम कॉलेजने एम्प्लॉयर आणि कॅन्डिडेट, जॉब गिवर, जॉब सीकर आहेत, स्तुत्य उपक्रम आहेत
आणि ही जी संधी तुम्हाला इथं तुमच्या कॉलेजमध्येच उपलब्ध करून दिली. नाहीतर काय होतं, कॅन्डिडेटला पास आउट होतो, कुठे वेकन्सीज आहेत, कोणत्या ऑर्गनायझेशन मध्ये, कोणत्या पोझिशन मध्ये आहेत, ते माहीत नसतं. कॉलेजने ही तुमच्यासाठी एक चांगली संधी उपलब्ध करून दिली की तुम्हाला तुमच्या कॉलेजमध्ये एम्प्लॉयरला बोलवलं. आता तुम्ही यामध्ये तुमची जी क्वालिटीज आहे, तुमचं क्वालिफिकेशन जे आहे आणि त्यांना जी रिक्वायरमेंट आहे ती मॅच होणार. तुम्हाला प्रूव्ह करायचं की तुम्ही जे आहेत त्या एम्प्लॉयर साठी बेस्ट कॅन्डिडेट आहेत आणि ऍसेट आहे. एम्प्लॉयर तोच बघतो की मला कॅन्डिडेट जो पाहिजे तो लायबिलिटी नको. तर ही संधी तुम्हाला उपलब्ध करून दिली. आमचा जो विभागाचा मुख्य काम आहे ते कॉलेज करते. आमचे पण दर महिन्याला असे जॉब फेअर्स आम्ही अरेंज करतो. एम्प्लॉयर्सना आमचे नेहमी कॉन्टॅक्ट असतात. एम्प्लॉयर्ससाठी आम्ही प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देतो आणि जे जॉब सिकर आहेत, कॅन्डिडेट आहेत, त्यांना बोलवतो. तर ही एक तुमच्यासाठी एक चांगली संधी दिली आहे आणि मॅनेजमेंटनं यासाठी आमच्यासोबत पण हा जॉब फेअर अरेंज करण्यासाठी प्रयत्न केला होता, परंतु एम्प्लॉयर बरेच आले होते आणि यापुढं पण आम्ही आता एकत्र करण्यासाठी आमचे जे एम्प्लॉयर्स आहेत, नागपूरचे झाले, मुंबईचे, पुण्याचे, त्यांना पण आम्ही एकत्र करून यापेक्षा पण मेगा जॉब फेअर आपण हा एक ड्राईव्ह घेतोय आपण, प्लेसमेंट ड्राईव्ह. तर पुढे पण आपण ज्या संधी उपलब्ध आहेत त्यासाठी आपण प्रयत्न करणारच आहोत. तर आज ही जी प्लेसमेंट ड्राईव्ह इथं तुमच्यासाठी उपलब्ध झालेली आहे, त्याचे आपण पुरेपूर फायदा घ्याल अशी आशा बाळगतो. आणि मॅनेजमेंटनी मला इथे बोलून जो माझा सन्मान केलेला आहे त्याबद्दल मी त्यांचे खूप आभारी आहे. धन्यवाद. नमस्कार. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. A beautiful line says, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, ना हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा. I would like to thank all the honorable delegates who bless us with their presence. I am also very much thankful to all Program Advisory Committee members and invited HRs. Words are not enough to thank their constant guidance and support to shape the mega placement drive. I, on behalf of organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our Honorable Chairman, Engineer Madan Mate. I am also thankful to Honorable Secretary Shri Ajay Wagmare, our beloved Principal Dr. Sanjay Kelo and Vice Principal Dr. Murlidhar Rangdale. They help us in obtaining the necessary administrative approval for organizing the event in our campus. They support it in all possible manner to organize this mega placement drive. My special thanks to all trustee members of Maitri Educational Society for their gracious presence. An event of this dimension cannot happen overnight. The wheels start rolling months in advance. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated staff, students committee and volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. I am very much thankful to the national and multinational companies and their HRs. It would have been impossible to organize
organize it without their supports. I would also like to thank our transportation team, catering teams, and all newspapers, media reporters, social media reporters. Without you guys, this event was not possible. Thank you very much again. At the end, I would like to take this opportunity to thank my colleague, Dr. Digambar Pawar, who joins hands to organize this dream mega placement drives, whose seat embedded in a simple discussion on a job fair and guided to execute for the needy students of our region. Thank you, sir. ये नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है जो सातनौरी नागपुर से है। एक ऐसा कॉलेज जिसे मैत्री एजुकेशन सोसाइटी चलाती है और ये कॉलेज उन बच्चों के लिए जो अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये बड़ा वरदान भी साबित होता है। दरअसल इस कॉलेज में जो व्यवस्थाएं बच्चों को मिलती हैं और जो सपोर्ट बच्चों को मिलता है, एजुकेशनल भी और मॉरल भी, वो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए यहाँ के आसपास के बच्चे जो है वो इस कॉलेज का हिस्सा ज़रूर बनते हैं। आज इस समय हम नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ एक महारोजगार मेला लगा हुआ है। ये महारोजगार मेला जिसे हम लोग कॉलेजेस की भाषा में अगर जानना समझना चाहे तो इसे मेगा प्लेसमेंट ड्राइव कहा जाता है। ये बच्चे जो अभी यहाँ पहुँचे हैं ये अपने लिए रोज़गार की तलाश में हैं और इनके रोज़गार के लिए यहाँ लगभग 30 से भी ज़्यादा कंपनियाँ पहुँची हैं जो उनके यहाँ इन बेरोज़गारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोज़गार का प्रस्ताव देंगे। उन्हें ठीक लगेगा तो वे स्वीकारेंगे, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में इस तरह के इवेंट का अर्थ क्या है। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं। क्या आप इस रोज़गार मेला के लिए आए हैं? हाँ, रोज़गार मेला के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? अमरावती से। अमरावती से। हाँ, आपको किस पता चला? दोस्त के थ्रू। अच्छा, आपने किस ब्रांच में क्या किया है? एमसीए हुआ है मेरा। अच्छा, एमसीए हुआ है। तो इसके पहले भी किसी रोजगार मेला में गए थे या? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं नागार्जुना में। क्या आपने आपका एजुकेशन जो है वो यहीं से पूरा किया? नहीं, अमरावती से। अमरावती से, विद्या भारती से। यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। किसी कंपनी को आपने पहले मिले या फिर अभी मिलने जाएंगे? फर्स्ट टाइम। तो अभी रजिस्ट्रेशन में लगे हैं। देखिएगा कि यहाँ पर इस समय ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारे जो युवा हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये उन कंपनियों के पास जाएंगे जिन कंपनियों में उनके लिए रोजगार के अवसर हैं। तो इन अवसरों को देखेंगे, समझेंगे और इन यहाँ पर जो कंपनियाँ पहुँची हैं उन कंपनियों की ओर से भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और कितनी संभावनाएं हैं उन बच्चों के लिए जो लिखे पढ़े हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है और अच्छी योग्यता के साथ यहाँ इस जगह पर अपने लिए कोई स्थान तलाश रहे हैं। अभी तक आपके पास कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? 138। 138। तो ये कब शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन? 10 बजे से। क्या ये एक ही टेबल है रजिस्ट्रेशन का? नहीं, 3 टेबल है। 3 टेबल है, तो अलग अलग टेबल पर अलग अलग लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। हमने ये जो पहला टेबल आपको दिखाया, यहाँ पर लगभग 138 लोग अभी तक इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये सुबह का वक्त है, बिल्कुल बस अभी ये रोजगार मेला शुरू हुआ है। आप यदि इस रोजगार मेला का हिस्सा बनेंगे तो आपको संपर्क करना होगा नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये जो कॉलेज है सातनौरी नागपुर में। हम लोग चलेंगे जरा वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्रेशन के और भी टेबल्स हैं और वहाँ जहाँ कंपनियाँ अपने एचआर के साथ बैठी हुई है। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं नागार्जुना इसी कॉलेज में हूँ मैं। अच्छा। 3rd ईयर इंजीनियरिंग चालू है, बाय प्रोफेशन एक्टर हूँ। हाँ हाँ। और अभी जस्ट पेपर हुए मेरे। अच्छा, बस। हाँ, क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो अभी? एक्चुअली आज पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है हमारे कॉलेज में। हमारे साजिद सर ने ऑर्गेनाइज किया है और सभी स्टाफ, टीचर्स। आप नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के लिए आप क्या कहेंगे?
यही कहूँगा कि कॉलेज बहुत अच्छा है, प्रीमाइसेस अच्छा है, बस फैसिलिटीज, टीचिंग स्टाफ सपोर्टिव है और जो रोज का शेड्यूल है वो बहुत अच्छा है। आप कितने सालों से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं? 3 साल, थर्ड ईयर चालू। इन 3 सालों में कितना प्लेसमेंट देखा है आपने? अभी 2 साल तो कोरोना में गई, पहला ही है। अच्छा, तो वो जो कोरोना के बीच का काल था उस वक्त तो कोई नहीं आया होगा, नहीं, ऑनलाइन हुआ सब, ऑनलाइन हुआ। लेकिन प्लेसमेंट हुआ है। हाँ, प्लेसमेंट हुआ है। कितना प्लेसमेंट है नागार्जुना का? अंदाजा मुझे भी नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ, लेकिन आपने जानकारी लेने की कोशिश भी नहीं की। क्या नाम आपका? पारस। भाई, आपने इतना बड़ा मेगा प्लेसमेंट ड्राइव शुरू किया है, तो हमारे- आपके कॉलेज में ये ड्राइव हमारे चल रहा यहाँ है। बहुत सी कंपनीज आई हुई है, 31 कंपनीज है। हाँ, सभी लोग आए हुए हैं, बहुत से स्टूडेंट आए हुए हैं। ये कंपनियां देश की हैं या विदेश की भी है? देश की है। देश विदेश दोनों से? हाँ। हाँ? हाँ। विदेश से कितनी कंपनियां हैं यहाँ? विदेश से पता नहीं सर कितनी है, हाँ। पर है, आई है। आई है। हाँ। और देश से? जैसे पुणे से आई है बहुत सारी कंपनियां, हाँ। नागपुर से आई है, मतलब पुणे से बहुत सारी कंपनियां, 20 कंपनियां शायद पुणे से ही आई है। क्या ये ड्राइव सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, No, no, sir. मैनेजमेंट इन्हीं ब्रांचेस से जुड़े हैं? नो सर, हाँ। सब ब्रांचेस के लिए, डिग्री बीटेक बीटेक डिग्री वो उनके लिए भी है, बीएससी एम कॉम सबके लिए है, अदर सबके लिए है। सबके लिए है। हाँ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का क्या कोई लिंक हमने लिंक दी थी 1 महीने पहले, हाँ हाँ, जो ये अपने पास ये है पॉम्पलेट, इस पर लिंक दी थी, वो लिंक कल तक चालू थी। अब आज www.nitm.in चालू है, इस पर हम 11 बजे तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने नहीं किया है वो। और अगर कोई कल आना चाहे तो? नहीं सर, वो कल नहीं कर सकते। कल नहीं हो सकता। नहीं सर। तो यदि अगर आप आज देख रहे हैं तो आज आप नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं। ये ड्राइव कितने बजे तक चलेगा? ये ड्राइव चलेगा 5 बजे तक। चलिए जरा उन एचआर से मिलते हैं जो अपनी अपनी कंपनियों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इस समय हम जहाँ पहुंचे हैं ये वो जगह है जहाँ इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव को वास्तव में आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब यहाँ कंपनियों के एचआर जो है वो यहाँ पहुंचे हैं अपनी अपनी कंपनियों के साथ। आप कहाँ से हैं? सर मैं आईटी पार्क नागपुर से हूँ। आईटी पार्क नागपुर। क्या क्या संभावनाएं आपके पास है, कितने अवसर हैं आपके पास? सर हमारे पास अवसर है, अभी आईटी टेक्नोलॉजी में हमारे को लगता है 10 लोग, और नॉर्मली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं जो आना चाहेंगे सेल्स मार्केटिंग में, उनके लिए 10 वैकेंसीज है। तो टोटल हम लोग 20 से 30 लोगों का वैकेंसीज लेके चल रहे हैं। हमारी कंपनी है ब्रेन्स वन टेक हब, आईटी पार्क नागपुर, बिहाइंड सीसीडी। क्या आपके पास सिर्फ मार्केटिंग है या फिर प्रोडक्शन भी है? प्रोडक्शन भी है सर, अपने कंटिन्यू 20 से 25 प्रोडक्ट्स हैं। हम रियल एस्टेट में सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, सोलर सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, अपना ERP है, अपने CRM है। तो इसमें टेक्निकल जहाँ डेवलपमेंट में चीज़ें लगती हैं वहाँ हमारे पास वैकेंसीज है। IT डेवलपर, इंजीनियर्स, टेस्टर्स की वैकेंसीज हैं। ये जो आपकी कंपनी है क्या ये सिर्फ नेशनल है या मल्टीनेशनल काम सर करती ये है? अभी तो नेशनल है, बट होप सबकी दुआ रही तो जल्दी मल्टीनेशनल बन जाएगी। देखिएगा कि इस तरह की अलग अलग संभावनाओं के साथ यहाँ कंपनियां पहुंची हैं इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में। सर यदि हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी तक नागार्जुना का ये जो हमारे पास जो खबर है, ये जो मेगा प्लेसमेंट है ये शायद पहली बार हो रहा है, लेकिन प्लेसमेंट तो रेगुलर चलते हो गए जो हर बैच के साथ होते हो गए, तो नागार्जुना का प्लेसमेंट कैसा है? हर साल यहाँ पर प्लेसमेंट होते हैं, है ना। कुछ नागपुर की कंपनीज में, पुणे की कंपनीज में, मुंबई की कंपनीज में स्टूडेंट्स प्लेस्ड होते हैं। हमने उसके डिस्प्ले भी लगाए हैं स्टूडेंट्स के बाहर में। इस बार थोड़ा लार्ज स्केल पे हम करने का देख रहे हैं जी। तो इसलिए पुणे से काफ़ी कंपनीज आई है, नागपुर से भी कंपनीज आई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्रेन्स वन टेक हब इनका यहाँ ग्रुप है, और वैसे ही अभी फर्स्ट फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे भी है जी, है ना। और काफ़ी सारे कंपनीज है, नियरली 30 to 40 कंपनीज वी आर हैविंग, और उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट देने का इस बार सोच रहे हैं। लेकिन सर हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे नागार्जुना इंस्टीट्यूट नागपुर से थोड़ा सा दूरी पर ही पड़ता है और ये गाँव को बहुत ज़्यादा कवर करता है, मतलब नागपुर के आसपास का जो ग्रामीण इलाका है। आपका अब तक का अनुभव कैसा है कि नागार्जुना से कितने बच्चे प्लेसमेंट हो पाते हैं? 60%, 70%, 80%, क्योंकि देश में अनएम्प्लॉयमेंट का भी जो रेशो है वो कोई कम नहीं है।
तो आपका अनुभव कैसा है? तो 50 to 60% तो स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस होते थे। अभी हमारा टारगेट है थोड़ा बढ़ाने का, अप टू 70% तक तो भी स्टूडेंट्स हमें ले जाना है। 70-75% जी। स्टूडेंट्स उसमें प्लेस हो सके। और मेन स्ट्रेस है हमारा कि जो रूरल एरिया के बच्चे हैं जी। उनको प्रॉपर जगह पर प्लेसमेंट मिले, है ना, प्रॉपर कंपनीज में प्लेसमेंट मिले, ये हमारा उसमें स्ट्रेस है। वैसे हमने तो अभी जिन लोगों से बात की नीचे रिसेप्शन पर, तो वहाँ से हमें ये पता चला कि इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फिर इंजीनियरिंग के ब्रांच के ही बच्चे नहीं, बल्कि ये सबके लिए खुला ड्राइव है। तो अन्य जो बच्चे हैं जो शायद कॉमर्स से आते होंगे या फिर प्लेन साइंस ग्रेजुएशन करके आते होंगे या आर्ट्स करके आते होंगे, ऐसे कितने बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, कुछ जानकारी? वैसे तो 2000 लोगों ने पूरा रजिस्ट्रेशन किया है हाँ। ये प्रोग्राम के लिए। अभी उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, कुछ और आएंगे। 12 बजे तक अभी स्टूडेंट्स का आना चालू ही है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियरली 1000 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट यहाँ पर में इंटरव्यूज देंगे। एंड वी आर ट्राइंग टू प्लेस देम इन प्रॉपर कंपनीज, यानी प्रॉपर कंपनीज में उनको अच्छा प्लेसमेंट मिले और उनका फ्यूचर बने, ये हमारा स्ट्रेस है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको ये याद दिला दें कि कभी हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, जहां बच्चे रजिस्ट्रेशन करते थे और फिर उनको कॉल किया जाता था। लेकिन अब वो स्थितियां बदल गई है बदलते वक्त के साथ, और अब कॉलेजेस में जब ये ड्राइव लगने लगे हैं तो बच्चों को और भी रिलायबल हो जाता है, और यहाँ से बच्चे अपने जीवन की उन अवसरों को पा लेते हैं जिन अवसरों के प्रति वे हमेशा सोचते रहते हैं कि भाई उनके लिए कोई खास स्थान बने। चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में हम देख रहे हैं F6 DTS नागपुर भी पहुंचा है अपने पास के कुछ अवसरों को साथ में लेकर। क्या कहेंगे F6 DTS नागपुर कि बच्चों के लिए क्या है आपके पास? सर एक्चुअली हमारे पास है कि हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अभी ये पूरा यूनिवर्सल जो डिपेंड करता है डिज़ाइन पे, राइट। कोई भी चीज़ें यदि हमें कुछ करना है तो डिज़ाइन बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, और हमारी कंपनी जो बेसिकली काम करती है सो पूरा डिज़ाइन वर्क में काम करती है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बताएं और इसी के रिलेटेड हम उस पर वर्कआउट करके कुछ बच्चों को हम हायर करें हमारे मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, तो ये डिज़ाइनिंग आपका किस क्षेत्र का डिज़ाइनिंग है? सर ये हमारा कोर फील्ड के लिए हम बेसिकली काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए। अच्छा, और कोई जनरल बच्चे आना चाहे तो उनके लिए सर क्या है उसके लिए आपके पास? ऐसा है कि देखो सर, डिजाइन तो कोई भी कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि फील्ड होना चाहिए, बस सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, यदि इंटरेस्ट है तो सब कुछ पॉसिबल है। इस ड्राइव में आप कैसे पहचानेंगे किस बच्चे के पास क्या इंटरेस्ट है? सर डिपेंड ऑन द फेस, आई कैन मतलब मैं इजीली उसको आइडेंटिफाइड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही बोलता है कि सर मैं इंजीनियर स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, तो आई नो वेरी वेल अबाउट देयर फेस। चलिए, ओके, थैंक यू। एक रजिस्ट्रेशन नीचे हुआ है, एक रजिस्ट्रेशन यहाँ हो रहा है। ये टाटा स्टिक का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम शेघाट। जी, शेघाट, शेघाट। ये कहाँ है? वरुड। वरुड। हाँ। आपको कैसे पता चला कि यहाँ मेगा ड्राइव हो रहा है? हमारे कॉलेज के मार्फत। आपके कॉलेज से पता चला है? सर ने बताया। सर ने बताया। आप दोनों एक ही गांव से हैं? हाँ? एक ही कॉलेज। क्या किस विंग में पढ़े हैं आप? BCA। BCA। आप भी? हाँ। हाँ? तो क्या अपेक्षाएं हैं आपको इस ड्राइव से? कुछ नहीं, बस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मिल जाए बस। हाँ? क्या योग्यताएं रखते हैं आप कि क्या क्या कर लेंगे आप BCA में, उस क्षेत्र में? कुछ नहीं, बस कोडिंग सॉफ्टवेयर का। हाँ। अच्छा, यदि हम आपसे ये जानना चाहें कि आपसे पहले भी आप ऐसे किसी प्लेसमेंट ड्राइव में गए हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, हमारा अभी BCA चल रहा है। हाँ। बस लास्ट से में। तो ये कहाँ चल रहा है? वरुड में। वरुड में ही चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करोगे? देखेंगे MCA वगैरह। अच्छा, जॉब उसके बाद मिली तुम तो पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे। हाँ। और जॉब मिले तो जॉब की तरफ चले जाओगे। देखिए, बेरोजगारी की जो स्थिति है आप जानते हैं कि हर एक युवा को ये लगता है कि अभी उसने जो कुछ पात्रता हासिल की है, या तो वो उसके साथ आगे बढ़े, अगर वहीं उसे कोई अवसर मिल जाए तो उसे अपने पास धर लें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए एक महत्वपूर्ण बात वो ये करना चाहते हैं कि अपना आगे की पढ़ाई जारी रखें। आप किस कंपनी के लिए यहाँ पहुँचे हैं? सर हम लोग सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारी। ये कहाँ से है? तो ये प्रॉपर सर गोंदिया से है। हाँ हाँ। और हमारा जो हेड ऑफिस है वो गोंदिया में है स्थित।
है और हमारी जो ब्रांचेस है अभी हमारे पास में 85 ब्रांचेस है जो कि आने वाले दिनों में 100 होने वाली है। तो पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों की ब्रांचेस है सर। तो आपके पास किस तरह के अवसर हैं? सर हमारे यहाँ पे सारी तरीके के अवसर है देखे जाए तो हम लोग फ्रेशर को भी मौका देते हैं और एक्सपीरियंस भी। तो अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं यहाँ पे सेल्स के लिए भी आए हैं। हमारे पास में आईटी में भी अपॉर्चुनिटीज़ है कैंडिडेट के लिए, जो फ्रेशर है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है सर। अच्छा, और अकाउंट्स पर काम करने वालों के लिए? ये सर अकाउंट्स वालों के लिए भी है, आईटी वालों के लिए भी है, सेल्स वालों के लिए भी है। हमारे पास में एचआर में भी ओपनिंग्स है। तो सभी पोजीशंस के लिए हमारे पास में ओपनिंग है सर फिलहाल। यदि मान लीजिएगा कि कोई आज ना आ सके और अगर इसके बाद अगर वो बिल्कुल। आपके साथ संपर्क करना चाहे तो कैसे करें? बिल्कुल सर, हम लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दे देंगे सर। आपका कोई And, वेबसाइट भी तो होगा? वेबसाइट है सर, सहयोग मल्टीस्टेट का खुद का अपना वेबसाइट भी है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का रीजनल ऑफिस है छत्रपति स्क्वायर में, तो वहाँ पे भी आके कोई किसी को मुलाकात देनी है तो वहाँ आके भी दे सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर से? हाँ। नागपुर में आपने किस ब्रांच में क्या पढ़ाई की है? मैंने मास्टर के एमकॉम किया है। एमकॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, एमकॉम किया है। कहाँ से? मैंने कमला नेहरू महाविद्यालय। नागपुर के कमला नेहरू महाविद्यालय से। क्या सोचते हो कि आपके पास में किस तरह का जॉब होना चाहिए? अभी तो हम फ्रेशर है, अभी तो जॉब सर्च कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी देखते हैं कैसा कैसा जॉब मिलती है हमको आगे में। लेकिन अभी ये तो बस एक बदलता वक्त है और इसमें टेली जैसे कई सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। हाँ सर, अकाउंटिंग मेंटेन करने हाँ, के लिए कई सॉफ्टवेयर आ चुके यस हैं। सर, यस सर, तो क्या आपने इस तरह का कोई एजुकेशन लिया है? हाँ, मैंने MSCIT किया है, टैली किया है। अच्छा, हाँ, ये सब तो- सॉफ्टवेयर किया है मैंने। तो देखिएगा, अभी वो बात तो नहीं चलती है कि कोई प्लेन ग्रेजुएशन करके कहीं अपने लिए अवसर खोजने चला जाए। आप तो देखा होगा कि लोग रेलवे की परीक्षा में भी इंजीनियर मिल जाते हैं। हम तो ये भी देखते हैं कि पुलिस भर्ती में भी इंजीनियर पहुंच जाते हैं। तो बेरोजगारी का तो आलम ये है, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के जो ड्राइव है जो मेगा प्लेसमेंट के लिए होते हैं, ये ड्राइव भी इन बच्चों के लिए बड़े सपोर्टेबल होते हैं। और यहाँ देखिएगा कि जो बच्चे पहुँचे हैं एक हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं और जो बहुत बेहतर तरीके से अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ आकर वे अपने लिए एक ऐसा स्थान खोज रहे हैं कि जहाँ से वे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो हम इस समय है ये नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में, जहाँ एक बड़ा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। सेंट्रल एवेन्यू क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल नागपुर का है और ये भी अपने पास में जो रोजगार के अवसर है उसे लेकर यहाँ पहुँचे हैं। यदि हम आपसे समझना चाहें कि आपके पास किस तरह के अवसर है? हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इस तरह के पोस्ट अवेलेबल है। क्या क्लिनिकल साइड से भी कुछ चाहिए होता है? क्लिनिकल साइड से भी चाहिए होता है, बट लेट्स सी, नर्सिंग इंचार्ज एंड हाउसकीपिंग इंचार्ज भी चाहिए हमको। लेकिन अभी यहाँ पे जो भी लोग आए हैं उस पर जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स रहेंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे। क्या जो लोग यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे? हाँ, यहाँ से हम उनको ऑफर लेटर देंगे और फिर अपने इंस्टीट्यूट में बुला के उनका जो सेकंड इंटरव्यू होता है फिर अपॉइंट करेंगे। अच्छा, उस इंटरव्यू में खरे उतरते हैं तो? नहीं, जो कैंडिडेट एलिजिबल है, जो हमको लग रहा है कि फिक्स है, तो उनको हम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से। अच्छा, देखिएगा कि इस तरह के जो ड्राइव होते हैं, इस ड्राइव का ये फ़ायदा भी होता है कि यहाँ सीधे अवसर होते हैं। आपका ये जो हास्टल सॉल्यूशंस है ये किस क्षेत्र पर काम करता है? हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन React.js में काम करते हैं एंड .NET में हमारा मेनली काम है। और हमारा एक ब्रांच है नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है और हम आउट ऑफ इंडिया के लिए भी काम करते हैं। मतलब आपका ये जो हास्टल सॉल्यूशंस जो है ये मल्टीनेशनल कंपनी है? यस। यदि आपकी बात से मैं जो समझ पाया, क्या आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं? हाँ, इंफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी है और हम लोगों को एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का एंड 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। एक React.js वाला बंदा हमको चाहिए है और एक HR एडमिन। इस तरह से लोग
अपने अपने कंपनियों के साथ यहाँ इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल हुए हैं। यह है कैड सेंटर नागपुर का और ये भी इस नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का एक पार्ट है। सर, एक बात आपसे समझना चाह रहे हैं कि कैड सेंटर किस क्षेत्र पर काम करता है? सर, टीचिंग का जो स्टूडेंट है उनको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का हमारा इंस्टीट्यूट है धर्मपेट और हिंगना में, CRPF गेट पे। और ये तकरीबन 12 साल हो चुके हैं वहाँ पे, और ये एशिया का नंबर 1 है। 700 प्लस सेंटर है कैड सेंटर के, और 30 कंट्रीज़ में है कैड सेंटर, यानी तकरीबन 10 लाख स्टूडेंट पढ़ चुके हैं अभी तक। तो कैड सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन देता है? नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों भी है। और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट्स इसमें भी बहुत इन्वॉल्व है, और इसमें बहुत सारे नीरी के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं। तो कैड यहाँ पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आया है? देखिए, स्टूडेंट को एक जो प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं हम, जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ये जो है बेसिकली नॉलेज जो है इनको प्रोवाइड, यानी प्रॉपरली इनका गाइड करेंगे और इनको अपॉइंट करके इनको नरिश करेंगे वहाँ पे। और वो कंपनीज में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इनको वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए हम देंगे, और वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। TCIT है, ये TCIT से HR अपनी कंपनी के अफसरों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। सर, यदि हम आपसे समझना चाहें कि TCIT किस तरह के अवसरों को लेकर यहाँ पहुँचा है? ओके, सो टाटा कम्युनिकेशन TCIT टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव ट्रस्ट ये जो है, सो ये टाटा ट्रस्ट के अम्ब्रेला के अंडर काम करता है, जिसमें टाटा की वेरियस कंपनीज आती है, लाइक टाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, तो इसे क्या TCS पुणे के नाम से जानते हैं? TCS, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मोटर्स, जितनी भी 160 प्लस टाटा की कंपनीज है, दोज हु आर वर्किंग अंडर द TCIT ग्रुप। तो इसमें हम अलग अलग तरह के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, और इसके कोई चार्जेस नहीं। यू नो कि टाटा ग्रुप किसी से कोई चार्ज वगैरह नहीं करता। सारे जो ट्रेनिंग होते हैं वो स्पॉन्सर होते हैं, और जॉब एश्योरेंस होता है उसमें। तो क्या इनको सिलेक्ट करने के बाद आप उनको ट्रेनिंग भी करते हैं आपके सेटअप के अनुसार? हाँ, ट्रेनिंग करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअल जब हम लोग काम करते हैं और पढ़ाई, थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है, और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाती बच्चों की, तो उनको ट्रेनिंग देना काफ़ी ज़रूरी होता है। अभी तक कितने कैंडिडेट यहाँ आपसे मिलकर गए हैं? यहाँ पे तो अभी जो स्टार्ट हुआ है, 7-8 ही कैंडिडेट आए हैं, उसमें से 6 शॉर्ट लिस्टेड है, बाकी और अपेक्षा है कि और बढ़ेंगे। यहाँ जिस तरह से बच्चों को आप इंटरव्यूज़ में बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कितने तैयार हैं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप? तैयार तो है बच्चे, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल नॉलेज की थोड़ी सी ज़रूरत है, वो हो जाएगा पॉलिश, क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसे कुछ प्रैक्टिकल्स अभी तक हैंडल तो किए नहीं है। अच्छा, लगभग सभी फ्रेशर्स हैं? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और क्लियर है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। क्योंकि एक बात ये भी है कि जहाँ ये ड्राइव हो रहा है ये बिल्कुल ग्रामीण इलाका है, और ग्रामीण इलाके में जुड़े हुए जितने बच्चे हैं वो बच्चे अधिकतर यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने जिन बच्चों के साथ काम किया होगा या जिस स्टाफ के साथ काम किया होगा, वो स्टाफ और ये यहाँ से जो आ रहे हैं वो बच्चे, इनमें क्या अंतर देखते हैं आप? ग्रामीण यानी कि रूरल एरिया के जो बच्चे होते हैं सर, उनका थोड़ा रिलोकेशन के लिए रेडीनेस कम होता है, यानी कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी तो चाहिए बट गांव में चाहिए। अच्छा। बट थोड़ा सा अभी हमें भी पता है कि गांव खेड़े में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, तो जहाँ जिस कंपनी जिस लोकेशन पे है वहाँ हमें रिलोकेट होना पड़ेगा। वैसी तैयारी चाहिए बच्चों की, वैसा माइंडसेट चाहिए। अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे 4 लाख सैलरी चाहिए बट मेरे गांव में चाहिए, उससे पहले चेक कर लेना चाहिए कि मेरे गांव में वैसी कंपनीज है कि जो मुझे 4 लाख रुपए सैलरी दे सके। मतलब अब ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, अपने क्षेत्र से बाहर जाने की तैयारी रखें, है ना? जो घर छोड़ने के लिए रेडी होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे 800 किलोमीटर दूर नहीं आते सर। जॉब्स है बट कैंडिडेट
उस माइंडसेट के चाहिए कि हमें कहीं और जाना पड़ेगा, काम करना पड़ सकता है, कभी कभी एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है। ये सारी आराम से अगर आप देखेंगे, बच्चे देखेंगे तो नहीं होगा सर, ऐसे बच्चों के अच्छा, लेकिन एक स्थिति तो हम हमारे यहाँ ये भी देखते हैं कि लोग पुलिस भर्ती में भी इंजीनियर्स पहुँच जाते हैं, तो ये भी स्थितियाँ बनती हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है जैसा आप कहते हैं, तो क्या ऐसा मान के चला जाए कि एक विशिष्ट क्वालिफिकेशन के साथ, विशिष्ट पात्रता के साथ बच्चे नहीं हैं? क्या स्किल्स फुल नहीं है? स्किल्स नहीं है सर, राइट स्किल बच्चों के पास नहीं होते, बट माइंडसेट ये होता है कि आई वांट टू बिकम अ एचआर, मुझे एचआर की जॉब चाहिए, बट मेहनत नहीं चाहिए उसमें, आराम से चाहिए, मेरे घर से नज़दीक चाहिए। अगर अभी हम लोग टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव के ट्रस्ट अंतर्गत टाटा कैपिटल जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब देते हैं, वहाँ पे फाइनेंस का जॉब होता है, या फिर कोई और बैंक मान लो एचडीएफसी वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर का ऑफर मिलता है बच्चों को, बट बच्चे ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि सर वो मेरे घर से दूर है, और मम्मी पापा भी कभी कभी बच्चों के फ़ोन करके बोलते हैं सर हमारा बच्चा रूरल एरिया से है, हमारे आजू बाजू में देखो। सो हाउ इट कैन पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, ये संभव नहीं होता, मतलब सब इस तैयारी में रहे। बच्चों को जॉब नहीं मिल पाती सर, अगर वो रेडी है तो कंपनीज लेती है उन्हें, बट आपके घर के पास अगर हमारा कंपनी है तो कैसे रह पाएंगे हम लोग? कंपनी नहीं ना वहाँ पे आपके लोकेशन में। सो कैंडिडेट शुड बी रेडी टू रिलोकेट इन पुणे, मुंबई, हैदराबाद एंड अदर सिटी। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ महालय होल्डिंग्स पुणे अपने अवसरों के साथ पहुँचे हैं। महालय होल्डिंग्स किस सेक्टर पर काम करता है? अपना जो ऑटोमोबाइल्स पे पार्ट तैयार होता है। अच्छा अच्छा। और कास्टिंग मटेरियल शॉक अब्सर भी बनता है। तो आपको सब के सब मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए? मैकेनिकल, बीए मैकेनिकल, ऑल आईटीआई। अच्छा, आईटीआई भी चलेंगे आपके पास? तो अभी कितने बच्चे आपके पास पहुँचे हैं? अभी एक्चुअली अभी 4 बंदा आए हैं। अच्छा, कितने अवसरों के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं? मतलब कितने लोगों की आपको ज़रूरत है? मिनिमम 100। मिनिमम 100 चाहिए है, अभी तक 6 पहुँचे हैं। 100 चाहिए है, 6 पहुँचे हैं, और अभी वैसे तो अभी ये शुरू हुआ है, लोग पहुँचेंगे। अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि इंजीनियरिंग के सेक्टर में क्या ये स्थिति है कि इंजीनियर्स को किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है, उधर शिफ्ट होना पड़ रहा है, ये स्थिति है? नहीं, एक्चुअल आदमी ही कम पड़ रहा है ना, मैन पावर ही कम पड़ रहा है, डिप्लोमा भी है। मतलब स्किलफुल इंजीनियर्स कम है, लेकिन इंजीनियर्स बहुत हैं। बाकी इंजीनियर्स बहुत हैं, काम करने वाले कम हैं। अच्छा। जो एक्चुअल काम करने वाले के एक्चुअल कम है मन के हिसाब से, उनको थोड़ा अलग टाइप का जॉब चाहिए, आईटी सेक्टर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा, तो ये स्थिति है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये गैब्रियल इंडिया पुणे है। हम समझना चाहेंगे कि गैब्रियल किस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस ड्राइव में आया? अभी मेरे पास तो मैं गैब्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी की तरफ से प्रतिनिधि बोल के इधर आया, एचआर असिस्टेंट बोल के। तो अभी मेरे पास डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, आईटीआई और उसके बाद बीएससी, बीकॉम, ये सब स्टूडेंट लगने वाले हैं हम। अच्छा। वो स्टूडेंट हायरिंग के लिए चाहिए मुझे फिलहाल तो भी। तो ये पहुँचे हैं आपके पास? सॉरी, ये आपके पास पहुँचे या नहीं पहुँचे? अभी तक मैं स्टार्ट अभी किया हूँ, इंटरव्यू अभी स्टार्ट किया है। अच्छा। सबसे पहले अभी तक चार इंटरव्यू है मेरे पास। इन 4 लोगों से कितना सेटिस्फाई है आप? सेटिस्फाई अभी तक तो एक ही लगा है मुझे कि अच्छा। पेमेंट एक्सप्रेशन ज़्यादा है, सबको अच्छा। पेमेंट ज़्यादा चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या आपके पास ऐसा कोई एज क्राइटेरिया भी है? हाँ, एज क्राइटेरिया है मेरे पास। 32 अब नॉट सेलेक्ट। अच्छा, अबाउट 32 जो है उनके लिए आप नहीं, लेकिन अन्य कंपनियों के पास एज क्राइटेरिया नहीं है? हाँ, अभी वो दूसरे कंपनी का तो मुझे नहीं पता, मेरे पास तो एज क्राइटेरिया है। आपके पास एज क्राइटेरिया है। क्या आपने कुछ खास और भी अपेक्षाएं रखी हैं? अभी तो स्टार्ट किया, अभी देखेंगे। मुझे तो अभी कम से कम 100-150 बंदे तो चाहिए। अच्छा। हाँ, एम्प्लॉय हायरिंग करना है, जो आपको 150 लोगों को हायर करना है? हायर करना है। और ये सब पुणे के लिए? हाँ, पुणे के लिए। गैब्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेबिल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, तो ये पूरा काम पुणे में ही होगा या पुणे में ही होगा? यहाँ दाना आनंद लिमिटेड पुणे पहुँचा है। ये एक्चुअल किस क्षेत्र में काम करता है? ये गेयर बॉक्स बनाता है, जो कि कंपनी का प्रोडक्शन है गेयर बॉक्स, और ज़्यादातर R&D डिपार्टमेंट जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करती कंपनी। अच्छा। कि अलग अलग, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनियों में जैसे कि 4 व्हीलर आया है, अभी नया लॉन्चिंग हुआ है जो कि रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहा है।
वो कहाँ से हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि शोध और प्रगति, इसके ऊपर काम कर रही है कंपनी। तो आपको रिसर्चर की भी ज़रूरत है? यस यस, तो आप यहाँ सिर्फ रिसर्चर खोजने आए? रिसर्च खोजने आए खोज में है हम। अच्छा, कितने कितने रिसर्चर चाहिए आपको? और रिसर्चर तो अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट निकलती रहती है, जैसे कि रिक्वायरमेंट अभी निकली है तो 100 तो फिलहाल हमें चाहिए। अच्छा, ओके, मगर देखेंगे अभी यहाँ पे कितने मिल पाते हैं। चलिए, मतलब ये एक ऐसे शोधार्थियों की तलाश में आए हैं जो शोधार्थी नई समझ के साथ कुछ चीज़ें डिज़ाइन करें, उनको आगे बढ़ाएं और उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से के साथ जोड़ कर बताएं। एक्यूरेट इंजीनियरिंग पुणे, एक्यूरेट इंजीनियरिंग क्या प्रोडक्ट्स लाता है मार्केट में? सर आम्ही थर्ड पार्टीसाठी इन्व्हेस्टिगेशन करतोय, ॲग्रो इंजिनिअरिंग एस्किल प्रोजेक्टला काम करतोय आम्ही क्वालिटीसाठी। अच्छा, तो इसका क्षेत्र कहाँ पर है? पुणे, हड़पसर। केवल पुणे में? और बाकी की तरफ है नहीं, अगर जी अब बच्चों को यदि आप अपने साथ रखते हैं तो उनका जॉब पुणे में ही होगा या फिर पुणे से बाहर? पुणे में ही होगा। कितनी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास? अभी तो वैकेंसी भरपूर है और सैलरी भी 17,000। अच्छा, तो आपको किस तरह के लोग चाहिए हैं? केवल इंजीनियर? इंजीनियरिंग डिप्लोमा, बी और फिटर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इतने लोग चाहिए। आपको तो अनुभव होगा, आपने ऐसे कई ड्राइव्स को आपने अटेंड किया होगा, किस तरह की क्वालिटीज़ यहाँ मिल रही है? अभी तो कल हमने अमरावती में सिलेक्ट किए 100 लोग को। अच्छा, तो अच्छा है, फीडबैक उनका अच्छा और है। यहाँ पे अभी चालू है, अभी आए हम, अभी चालू है। अच्छा, अभी शुरुआत हुई? अभी शुरुआत हुई, अभी आए हम 11 बजे, अभी चालू है। चलिए, थैंक यू। ये जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट का ये जो मेगा प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, इस मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लोग अलग अलग कमरे पर अलग अलग अपने अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे ही बच्चे जो यहाँ बैठे हैं। आप कहाँ से हैं? सर नागपुर। नागपुर से आए हैं। और आप? नागपुर। अच्छा, आप सब नागपुर से आए हैं? यस सर। किस ब्रांच में आप पढ़े हैं? सर MBA। MBA किया है आपने? क्या इंजीनियरिंग के बाद किया है? नो सर, ग्रेजुएशन। अच्छा, डायरेक्ट आप मैनेजमेंट में गए हैं? यस सर। हाँ, तो इस तरह के कितने जॉब यहाँ पर है जिसमें आप अभी किसी से मिले, नहीं मिले, क्या हुआ? सर अभी तक तो हम किसी से मिले नहीं है, अभी तक हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं, बट जैसे कि हमको पॉम्पलेट्स मिला था उसमें हमने देखे हैं, तो उसमें हमारे अकॉर्डिंग MBA के लिए 4 to 5 कंपनीज है जिसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ तो हम लोग अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारी कंपनियों का ये भी कहना है कि जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं वो अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहते, दूसरी तरफ जाना नहीं चाहते। आप क्या चाहते हैं? सर सही है, जिस फील्ड में अगर हमने किए हैं हम उसी फील्ड में अगर नहीं, अपनी जगह को मतलब अपने नेटिव को छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते, तो आपकी क्या तैयारी है? सर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर बाहर में है तो हम बाहर जाने के लिए भी रेडी है। अच्छा, और आपने किस ब्रांच पर पढ़ाई की है? सर MBA। आप सब MBA हैं? 1 2 3 4। अच्छा, आप एक साथ सब सहेलियाँ हैं? यस सर। हाँ, और सब मिलकर आई हैं? यस सर। अच्छा, अब से पहले भी आप किसी ड्राइव में गए? यस सर। हाँ, तो वो उस ड्राइव में क्या स्थिति थी? सर ऐसा ही था, सेम ऐसा ही था? हाँ। लेकिन कुछ नहीं मिला? नहीं सर, कंपनी मिली थी, हमने ट्राई किया। हाँ, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने का है। अच्छा, वहाँ से रिस्पॉन्स आने को है अभी। आपने जब ग्रेजुएशन किया अभी कितना वक्त बीत चुका है? 2 साल। 2 साल। इन 2 सालों में क्या अनुभव है आपका इस बेरोजगारी का? हाँ? आपने किस ब्रांच में स्टडी की है? मैंने MSc में स्टडी की। MSc? कंप्यूटर साइंस। MSc कंप्यूटर साइंस में किया। वैसे आपके क्षेत्र की तो बहुत सारी कंपनियां हमें दिखाई दी यहाँ, है ना? तो अभी आप किसी से मिले नहीं? नहीं, अभी HR आ रहे हैं एक एक करके, तब अच्छा। जाएंगे उस रूम नंबर में। क्या आपसे पहले भी किसी ड्राइव में गए हैं आप? हाँ, तो ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह भी दिया है। हाँ। और टेस्ट भी दिए। तो क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? अपेक्षा तो कुछ नहीं, अभी जॉब के बारे में ही है सब। अच्छा, लेकिन आपकी अपेक्षाओं को कंपनियां मानती हैं या फिर उनकी अपेक्षाओं पर काम करना होता है? वैसे तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है अब सब, तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। अच्छा, आपके पास में आपके ब्रांच के अलावा और क्या अलग स्किल्स आप रखते हैं? स्किल्स मैंने इंटर्नशिप भी की हुई है
हाँ। ग्रोस ऑफ टेक्नोलॉजीज में, अच्छा। और वो 6 मंथ की थी, तो थोड़ा हाँ। बहुत एक्सपीरियंस। देखिएगा कि ये पूरे ग्रुप के ग्रुप बेरोजगार है और ये बेरोजगार ग्रुप यहाँ इस रोजगार मेले में पहुंचे हैं। ये महारोजगार मेला जो नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हमने इंजीनियरिंग के बच्चों को ऐसे कई मेले में देखा है कि जो पुलिस भर्ती में पहुंच जाते हैं, ऐसे वो बच्चे भी हैं। तो बेरोजगारी का ये जो आलम है, इस आलम में इस तरह के रोजगार मेले से कितनी राहत मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त हमने आपको जोड़े रखा है इस नागार्जुन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इस महारोजगार मेले के साथ, जिसे कहा जाता है मेगा जॉब प्लेसमेंट।